अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाका गुलबर्ग में सिख फैमिली के साथ हुई डकैती की एक बड़ी वारदात। इस वारदात के बाद गोया पुलिस मुतहरिक हो गई और इंतहाई कलील अरसे में इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने कैसे इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए, वारदात करने वाले मुल्ज़म कौन थे और कब से ये घिनौनी वारदातें कर रहे थे, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये सब दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद है वो सिख फैमिली जिनके साथ गुज़श्ता दिनों वारदात हुई और इस वारदात को लेके नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ी बातें हुई। ताहम लाहौर पुलिस ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में न सिर्फ इस वारदात को ट्रेस कर लिया बल्कि इनमें मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया। मुल्ज़मान तो गिरफ़्तार हैं, सरदार कंवलजीत सिंह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और आज इनकी हैप्पी बर्थडे भी है, इनकी सालगिरह भी है। पहले तो सरदार साहब आपको हैप्पी बर्थडे, आपको सालगिरह मुबारक हो। दूसरा, आपके साथ वारदात हुई, मुल्ज़मान इंतहाई कलील वक़्त में पकड़े गए, क्या कहेंगे इस पे आप? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੇਰਾ 4 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਡਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸਨ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹੀਓ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀਓ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਮੁਜਰਮ ਲਈ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸਨ। ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਸ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ। ਚਲੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਲੱਗੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ज़्यादा प्यार ਤੁਹਾਨੂੰ देवांगे। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। जिन्होंने वारदात की वो कानून की गिरफ्त में है, उन्हें मिलेगी उनके किए की सज़ा। और हमारे जो सिख फैमिली है, हमारे भाई, हमारी भाभी जो कि दूसरे मुल्क से यहाँ पर अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आए थे, तो वो उनका भी यही कहना है कि कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, बिला झिझकाएँ महफूज हैं आप भी और हम भी। गुलबर्ग के इलाका में सिख फैमिली के साथ वारदात होती है, एक शोर मच जाता है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया इस वारदात को लेकर जो है एक शोर मचा देता है। बताया जाता है कि शायद कि ये मुल्क गैर मुल्की शख्सियात, गैर मुल्की अफराद के लिए गैर महफूज है। लेकिन लाहौर पुलिस के विंग CIA ने इंतहाई कलील अरसे में न सिर्फ इस वारदात को ट्रेस किया बल्कि इसमें मुलविस मुलजमान को भी गिरफ़्तार किया। कैसे किया इस वारदात को ट्रेस, किस तरह आए मुलजमान कानून की गिरफ्त में, इन सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SSP साउथ CIA आफ्ताब अहमद फुलरवान। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू मलिक साहब। सर वारदातें तो रोज़ाना होती हैं, रोज़ाना डाकू पकड़े भी जाते हैं, मगर एक वारदात होती है गुलबर्ग में, वो भी होती है एक सिख फैमिली के साथ। उस वारदात के बाद एक शोर मच जाता है। क्या कहेंगे इस वारदात के बारे में? कैसे ट्रेस किया इसको, किस तरह किया मुलजमान को गिरफ़्तार? मलिक साहब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मुआशरा होगा वहाँ जुर्म होगा, लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं कि जिनकी डायनामिक्स में पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल पैदा होता है। ये मुल्क हमारे लिए पूरी दुनिया में वाहिद पनाहगाह है। पनाहगाह, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क, ये हमारी सरज़मीन है। हमारी सरज़मीन। और इस सरज़मीन पे अगर कोई मजहबी ज़ियारात के लिए आ रहा हो तो, और वो सिख यात्री हो, क्योंकि सिख यात्रियों के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि वो हमारे इंतहाई रिस्पेक्टेबल मेहमान हैं और हम हमेशा से उनकी इज़्ज़त करते आए हैं, इज़्ज़त करते हैं। अब इस तनाजुर में एक सिख यात्री फैमिली के साथ
गन पॉइंट पे वारदात हो जाती है, वो पुलिस वाला बन के उनको लूट के ले जाते हैं। बहुत बड़ा टास्क था। सीएम पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, सीसीपी बिलाल सदीक कामियाना साहब, कैप्टन लियाकत अली मलिक, एक पूरी चेन इसमें इन्वॉल्व हो गई, जिन्होंने नोटिस ले लिया। यस, उन्होंने कहा इसमें अब नो और नेवर था। नो और नेवर। सिख यात्री जो सरदार कवलजीत सिंह, उन्होंने वापस चले जाना है। अगर वो वापस चले जाते हैं और वारदात ट्रेस नहीं होती तो ये एक अगेन बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती है, बदनामी का बाइस है ये। इस टास्क का बीड़ा कैप्टन लियाकत अली मलिक डीआईजी उसी यूनिट उठा लिया। यानी लाहौर पुलिस की अब इज्जत का सवाल है। यस। और उस इज्जत को बचाने के लिए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक मैदान में आए और फिर उन्होंने हमें टीम्स तश्कील दी। डीएसपी अली भट्ट, डीएसपी हुसैन अदर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। एक ही क्लू था कि जी सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जिस पे मुल्ज़मान आए थे, नंबर प्लेट चेक की, जाली थी। गाड़ी किधर गई? लाहौर में लाखों सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ हैं, सीसीटीवी कैमराज। हमारी टीमें आप इस तरह समझें कि चींटियों की तरह मेहनत पे लग गई। गाड़ी को एक एक लम्हे, एक एक पल्लू पे चेक किया गया। हम कितने कैमरे चेक किए आपने? 1000 से ज़्यादा कैमरों की रिकॉर्डिंग्स चेक की गई। अच्छा। अब वो कैमरा ये नहीं कि कैमरा देख लिया, अच्छा, नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करनी। पर मुहित थी वो रिकॉर्डिंग, आप उसकी जाएंगे तो सैकड़ों घंटे बन जाते हैं, सैकड़ों घंटों। लिहाजा कई टीमें काम कर रही हैं। अच्छा। इंस्पेक्टर शाहिद उस पर काम कर रहा है, उसके आगे जवान, उसके कांस्टेबल, डीआईजी साहब ऑपरेशन रूम में बैठे हैं और बार बार पूछ रहे हैं हुण की बनया, कितने पहुंचे हो। कौन सा ऐसा क्लू था जो आपने कहा बस भाई अब इससे आगे? सफ़ेद रंग की गाड़ी, उसमें सुनहरे बालों वाला बंदा बैठा है। अच्छा, ठीक है। अब उस गाड़ी की मूवमेंट चेक हो रही है। उसकी मूवमेंट चेक करते हुए हम उस घर तक पहुंच गए जहां पर वो कुछ देर के लिए ठहरे थे। आर्जी तौर पे वो ठहरे थे, उसके बाद वो चले गए। फिर घर वाले से तफ्तीश हुई तो पता चला कि मोबाइल नंबर, फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गई, उस पे काम किया गया, उसके खाके तैयार करवाए गए, पाकिस्तान में रेड किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह उस मोस्ट वांटेड पर्सन को, जो लाहौर पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था, शाहरुख खान, ही वाज अरेस्टेड। जब अरेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है। अच्छा, किस मुल्क से उसका ताल्लुक है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से हम आपको मुल्क नहीं बता सकते। गैर मुल्की था वो। गैर मुल्की था, पाकिस्तान के एक हमसाया मुल्क का वो बाशिंदा है। अच्छा। और ये मुल्क इंडिया नहीं है। अच्छा। ताकि ये कोई गलतफहमी ना रहे कि वो एक दूसरे मुल्क है। और उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि क्या किसी दीगर एजेंसी की इंस्टिगेशन पे तो ये काम नहीं हुआ, और उसमें हमारी जो सिस्टर एजेंसीज। अच्छा, जब मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए, मुल्ज़मान की तादाद कितनी है ये भी ज़रा बता दीजिएगा। और इसके बाद कि फिर उनसे आपने किन पहलुओं पर तफ्तीश की? 5 रुकनी गैंग है बुनियादी तौर पर। तरीका वारदात इनका ये कि ये अपने आप को एजेंसी, पुलिस एजेंसी बना के या मुल्की एजेंसी बना के तलाशी लेते हैं, और अगर कोई मुज़ामत करे तो फिर पिस्टल भी निकाल लेते हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान की अभी तादाद 5 है? अभी 3 है। अभी 3 है। दीगर की गिरफ्तारी के लिए रेड अभी भी जारी हैं। मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं जी। SSP आफ्ताब अहमद फुलरवान क्या पैगाम देंगे ऐसी वारदातें करने वालों को, और उन गैर मुल्कियों को जो कि इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद हैं, और एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि शायद वो गैर महफूज हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो गैर मुल्की हमारे पास आते हैं वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी आमद की ज़रूर इतला दें, ताकि हम उनकी सिक्योरिटी को हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के तौर पे ट्रीट कर सकें और उनके साथ किसी किस्म का कोई इशू ना हो। और मुजरमों के लिए तो बड़ा क्लियर पैगाम है, लाहौर मुजरमों के लिए एक हार्ड लैंड बन चुका है जहाँ पे कोई माफ़ी नहीं है। आप ये देख लें कि लाहौर में पिछले 6 माह में जितने भी हाई प्रोफाइल क्राइम्स हुए हैं तमाम ट्रेस्ड हैं, जितने भी अगवा बराए तावान हैं तमाम ट्रेस्ड हैं, ब्लाइंड मर्डर्स तमाम ट्रेस्ड हैं। और ये क्रेडिट हमारी लाहौर पुलिस की कमांड, हमारे CCPO साहब जनाब बिलाल सदीक कामियाना और उनके राइट हैंड DIG OCU कैप्टन लियाकत अली मलिक को जाता। बात सुनिए आपने SSP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान की। उनका कहना है इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है,
उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। और हाँ, ये मुल्क, ये शहर गैर मुल्कियों के लिए महफूज है। आपने देखी सीआईए मॉडल टाउन पुलिस की ये कार्रवाई। अब मैं आ गया हूँ थाना शादरा में, जहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 माह के मासूम बच्चे को अगवा करने वाले मुल्ज़िमान को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उनके कब्जे से मासूम बच्चे को बाजियाब करवा के उसके वर्सा के हवाले कर दिया। पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश करके मासूम बच्चे को बाजियाब करवाया, अगवा की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे, हम आपको सब दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अब हम जा रहे हैं उस मासूम बच्चे ईसा के घर जिसे अगवा किया गया था और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उस बच्चे को बाजियाब करवा लिया था। यहाँ हमें ज्वाइन किया है एसएचओ शादरा आमिर शहजाद ने। तो हम उनसे पूछते हैं कैसे की उन्होंने ये कार्रवाई, किस तरह बच्चे को बाजियाब करवाया। आमिर, 2 माह का बच्चा अगवा हो गया, शोर मच गया, खौफ व हरास की एक सूरत हाल पैदा होगी आपके इलाके में, कैसे आपने इस सूरत हाल को कंट्रोल किया, किस तरह उस बच्चे को बाजियाब करवाया? सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी कि ये 2 माह का बच्चा है और एक ममता के बगैर वो किस तरह वो बच्चा रहेगा। उसका हमारे दिल में ख्याल आया और फौरी तौर पर जैसे ही उस बीबी ने रब्ता किया, हमने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद एक टीम तश्कील दी जिन्होंने उस बच्चे की रिकवरी के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे रेड्स करना शुरू कर दिए। उसमें उसके ससुराल में, उसके ख़ानदान में, उसका शोहर जहाँ पे काम करता था वहाँ पे, उसके दूर दराज गाँव में, शेखुपुरा में और लाहौर में और बॉर्डर के पास हमने रेड्स किए हैं। और उससे फिर जाके हमें वो बच्चे की रिकवरी। कौन सा ऐसा सुराग था, कौन सा ऐसा निशान था जिस पे आप चल के इन मुल्ज़िमान तक पहुँचे और उस बच्चे को बाजियाब करवाया? कोई क्ल्यू ऐसा आपको मिला हो? एक्चुअली ये जो मुल्ज़िमा औरत थी उसके साथ वाले घर में हमसाई थी और वो उससे बच्चा ले के गई थी, जिससे ये कंफर्म था कि ये बच्चा वो औरत ही लेके गई है, उसके साथ वाली हमसाई। फिर हमने उसके शनाख्ती कार्ड से, उसके बच्चों से, जहाँ जहाँ पे वो रहाइश पजीर थी उसके मोबाइल नंबर से, कैमरास की मदद ली हमने, और जहाँ जहाँ पे वो स्टॉप से बैठ के रक्शे पे गई उसको फॉलो अप किया। वो करते करते हम मुख्तलिफ़ जगहों पे रेड्स करते गए और इसी तरह उसके ख़ानदान की इन्फॉर्मेशन के ज़रिए भी जो है ना टीम जो गई हुई थी वहाँ पे उन्होंने रेड्स करके। अच्छा आमिर, अगवा की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे, क्या वजूहात थी, क्या तफ्तीश मुकम्मल हो गई? क्योंकि मुल्ज़िमान तो आपने इन्वेस्टिगेशन विंग के सपुर्द कर दिए हैं, किन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है? इसमें 2 किस्म के पहलू थे, जैसे हमारे अफसरान ने भी बताया कि एक तो ये था कि उस बीबी के घर में औलाद नहीं हो रही थी और उसकी फैमिली उसको डिस्टर्ब कर रही थी। मगर ऑलरेडी तो उसके 2 बच्चे थे, क्या उसने कोई दूसरी शादी की थी, क्या था वो? दूसरी शादी में उसकी औलाद नहीं हो रही थी, तो वो जो नई फैमिली थी वो उसको काफ़ी ज़्यादा टांट करती थी, उसको ताने मारती थी कि तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती। उसने उसको पहले ऑलरेडी बताया हुआ था उस बीबी ने कि मेरे घर में बच्चा होने वाला है, लेकिन वो जब ये बच्चा लेके गई है उस ख़ानदान में तो उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, माना भी नहीं। उन्होंने कहा ये तुम झूठ बोल रही हो। फिर दूसरा पहलू इसका ये है कि जादू टोने का असर का हो सकता है। अभी इस हवाले से तफ्तीश चल रही है? जी बिल्कुल तफ्तीश चल रही है। तो तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं कि अभी कुछ की गिरफ्तारी बाकी है? इसका एक शोहर है बीबी का जो कि वो भाग गया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द उसको पकड़ा जाएगा और ये तफ्तीश मुकम्मल होकर मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बातें सुन ली आपने SHO शादरा आमिर शहजाद की। उनका कहना है कि मासूम बच्चे को जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश करते हुए उन्होंने बरामद करवाया। मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, उनके दीगर साथियों की गिरफ़्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है कि आया अगवा की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे। मेरे साथ नन्हे ईसा की वालदा हैं, खुशी उनके चेहरे से छलक रही है। उनसे पूछते हैं एक माँ की ममता को कितना सुकून मिला जब
बेटा दोबारा उसकी गोद में आया। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपकी गोद दोबारा भर दी, दोबारा मासूम ईसा जो है वो आपकी गोद में आ गया। क्या जज्बात हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ मेरे लिए वो कम है। मैं शुक्र अदा करती हूँ, मेरा बेटा दोबारा से मेरे पास वापस आ गया, जो कि मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वालों में मुझे 12 घंटे के अंदर अंदर मेरा बच्चा बरामद करके दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये तो ज़रा मुझे बताएं ना, हुआ क्या था? मैं अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ थी, वो इधर हमारे घर पे काम करती थी। ये रो रहा था, चारपाई पे लेटा हुआ था, उसने इसको उठाया, खिलाते खिलाते वो नीचे लेके चली गई। जब मैंने उसको देखा वो जा रही है, तो अब मैंने उसको गली में देखा, वो चली गई। हमारी नज़रों से ओझल हो गई, इधर उधर हो गया। हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, हमें नहीं मिली। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये दरख्वास्त दी कि हमारे बच्चे को अगवा कर लिया है। अच्छा, अब बेटा दोबारा गोद में है, जब गोद में नहीं था यकीनन दुख की कैफियत होगी, आप क्या कैफियत? अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या कहना चाहेंगी ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में ना हो? माओं को क्या पैगाम देंगी? अपनी दीगर बहनों को क्या कहेंगी? माओं के लिए मेरा ये पैगाम है, अपनी कोई भी दोस्त, फ्रेंड, मोहल्ले की कोई भी औरत किसी को अपने घर पे ना आने दे, और किस पे जितना मैंने यकीन किया था उस औरत पे, उस तरह का यकीन करके वो दोबारा से कभी इस तरह की गलती ना करे। अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। बच्ची की नानी है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। माँ की माँ, इनके क्या जज्बात हैं, इन्हीं से पूछते हैं। पहले तो आपको मुबारक हो जी, आपका नवासा आपके पास आ गया, क्या कहेंगे? सानू बहुत बड़ी खुशी है कि इंशाल्लाह साडा बेटा फिर सानू दोबारा मिल गया। खुशी है कि बेटा दोबारा, नवासा दोबारा बेटी की गोद में आ गया। एक माँ को बेटा मिल गया है दोबारा। SHO शादरा आमिर शहजाद भी मेरे साथ उस घर में हैं। इन्होंने बच्चे को उसकी वालदा के हवाले किया है। खुशी का एक माहौल है यहाँ पर, गली में भी खुशी मनाई जा रही है। खासा शोर जो है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। आमिर, क्या महसूस कर रहे हैं एक माँ को उसका बेटा वापस दिलवा के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें किसी के साथ कोई बच्चा किडनैपिंग की बात है या कोई भी मामला किसी के साथ ज़्यादती हुई हो, जिसमें भी मामले में हम उसकी हेल्प आउट करें, और हमें हकीकी खुशी मिलती है लोगों की खिदमत करके। और ये हमारे अफसरान की तरफ से भी है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला इस फ़र्ज़ को अदा करते रहेंगे हमेशा। हाफिज़ खुर्रम जो कि चौकी इंचार्ज बेगम कोट हैं, इन्होंने भी एक कुलीदी किरदार, एक अहम किरदार था इनका इस बच्चे की बाजियाबी में। इन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। हाफिज़ साहब, एक माँ को आपने उसका बच्चा वापस दिलवा दिया, क्या जज्बात हैं, क्या कहेंगे, किन पहलुओं पर आपने भी तफ्तीश की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है। इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसे जो है ना वो कामयाबी जो है ना वो अता करता है। जैसे ही ये बीबी सबसे पहले चौकी बेगम कोर्ट में आई 15 की कॉल के बाद कि इस तरह जो है ना इनका बच्चा जो है ना वो अगवा हो गया है, जिस तरह ये रो रही थी, तो हम भी बच्चों वाले हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। एकदम से जो है ना वो इनकी हालत देखकर मुझे जो है ना वो अंदर से आवाज़ आई कि जो है ना वो इस काम को जो है ना वो फौरी तौर पर जो है ना वो पाया तकमील तक पहुँचाना है। और आपने पाया तकमील तक पहुँचाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरी तौर पर मैंने जो है ना वो SHO साहब के जो है ना वो नोटिस में लाया, अपनी ASP साहब शादरा सर्कल सैयद एहसान शाह साहब, उनके नोटिस में लाकर एक टीम तश्कील की। सोर्सेज को जो है ना वो भरपूर तरीके से हमने इस्तेमाल किया, और मुल्ज़मान को आपने गिरफ़्तार कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ज़मान को हमने जो है ना वो गिरफ़्तार किया, और ये जो है ना वो इनका बेटा जो है ना वो बाहिफाजत तरीके से। सबसे पहले खुशी मुझे उस वक़्त हुई जब मैंने इसको दोबारा पकड़ के मुल्ज़मान से और इसके नाना के हवाले किया। उस वक़्त इनके नाना का भी जो है ना वो एक जो है ना वो तासुर था, और इनके दिल से दुआ निकली थी मेरे लिए। वही जो है ना वो हमारा सरमाया है, क्योंकि हम आवाम की खिदमत के लिए हैं। यकीनन आवाम की खिदमत ही सबसे बड़ा सरमाया है। दुआएं असर लाती हैं, दुआएं जो हैं वो कामयाबी के रास्ते खोलते हैं, और इन्हीं दुआओं की बदौलत ये मासूम, ये प्यारा सा 2 माह का ईसा इस वक्त अपनी माँ की गोद में खेल रहा है। यहाँ से हम चलते हैं थाने की जानिब।
बात करते हैं हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा राना उमर दराज से, उससे पूछते हैं कि उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। राना साहब, 8 घंटे के कलील अरसे में आपने मुल्ज़मान को पकड़ लिया, 12 घंटे के अरसे में, कैसे, किस तरह? जैसे ये रात को 15 पे कॉल होती है, 15 की कॉल के बाद SHO शादरा आमर साहब और मैं, हम दोनों टीम बनाते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम सलमान ASA की सरबराही में होती है। इसमें हमारे 4 सब इंस्पेक्टर हम शामिल करते हैं, क्योंकि 2 माह का बच्चा है और वो अपना नाम, अपनी शनाख्त तो बता नहीं सकता। फिर हमें ये भी ख़तरा था कि ये कहीं जादू टूना के लिए अगवा ना किया गया हो, बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो सारी रात हम उन्हीं गलियों में, उन्हीं बाज़ारों में ढूंढते रहते हैं। टेक्निकल सहूलत जैसे ही हमें उसकी CDR मिलती है तो हम उस CDR पर काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, उम्र बताइएगा, टोटल कितने मुल्ज़म हैं? क्योंकि ख़वातीन को तो आपने जुडिशल कर दिया, जेल भिजवा दिया, अभी इनसे तफ्तीश जारी है। टोटल मुल्ज़मान की तादाद क्या है और अब तक की तफ्तीश में इन्होंने क्या बताया? जो मेरी नज़र में है वो पूरी तफ्तीश में 3 तो मुकम्मल तौर पर मुलव्वस पाए गए हैं, बाकी 2 के बारे में अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। टोटल 5 लोगों का किरदार है। सबसे पहला बड़ा किरदार तो बीबी का है, जिसकी पहली शादी होती है, उसमें से ये दोनों बच्चे हैं। ये दोनों बच्चों को छोड़कर वो दूसरी शादी कर लेती है अमी शख्स से। वो इससे कहता है कि तेरे घर बच्चा पैदा नहीं हुआ और मेरे घर वाले तुझे कबूल नहीं कर रहे। वो इस तानों से तंग आके उसको एक झूठी कहानी सुनाती है कि मेरा बच्चा है, मैं पेट से हूँ। लेकिन जैसे ही उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता तो ये जो हमारा बीबी है मदैया मुकदमा, इसके 4 बेटे हैं। ये बेटा 2 माह पहले पैदा होता है, तो ये 7 माह कबल इसके घर जो है काम करती होती है, कपड़े वगैरह वाश करती होती है। तो ये इस आस में होती है जैसे इसके बच्चा पैदा हो मैं बहाने से इसका बच्चा उठा लूँगी। तो जैसे ही ये पूरी प्लान होती है, अब ये अपने खामद को बता देती है कि मेरे हाँ बच्चा नहीं है। उसका खामद कहता है कि अगर बच्चा नहीं है तो हमारे घर वाले आपको कबूल नहीं करेंगे। तो ये दोनों मियाँ बीवी प्लान करते हैं। अच्छा, अब तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? मुहरकात तो आपने बता दिए कि वो औलाद के लिए कर रही थी, जबकि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? कब तक पाया तकमील तक पहुँचाएंगे आप इस तफ्तीश को? मेन मुलज़मा जो बीबी है और उसका जो बड़ा बेटा है, इनको गिरफ़्तार कर लिया है और एक मुलज़म की गिरफ़्तारी बकाया है। मगवी को उसकी वालदा के हवाले कर दिया है। अब हमारी तफ्तीश जो है, हमने कोर्ट में पेश करना है। इनको कोर्ट में पेश करने के बाद इनका रिमांड जुडिशल मंजूर करवाने के बाद जो हमारे पास टेक्निकल सहूलत हैं उसकी मदद से हमने सेल को गिरफ़्तार करना है और ये इंशाल्लाह विदिन 14 डेज़ ये चलान मुकम्मल होगा और ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। बातें सुन ली आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना उमर दराज की। तहम तफ्तीश का सिलसिला अभी जारी है। शादरा के इलाका बेगम कोट से 2 माह का नन्ना ईसा अगवा हुआ। पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में महज 12 घंटे के अंदर 8 मुख्तलिफ मकामात पर रेड किए हैं। न सिर्फ मासूम ईसा को बाहिफाजत बाजियाब करवाया, बल्कि उसे अगवा करने वाले मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार मुल्ज़म कौन थे, क्यों उन्होंने नन्हे बच्चे को अगवा किया? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ASP शादरा सर्कल सैयद एहसान उल्लाह शाह। तो हम उनसे पूछते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, नन्हा बच्चा अगवा हो गया, कैसे, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, किस तरह मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए और अब तक की तफ्तीश में क्या क्या मुहरकात सामने आए हैं? जी शुक्रिया सबसे पहले कि आप आए यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट केस था और इस पे पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से भी एक अच्छा एक एस्पेक्ट है जो आवाम को पता होना चाहिए इस बात का। ये हुआ ये था कि बेगम कोट चौकी है, थाना शादरा की वो एक चौकी है, वहाँ पे हमें कॉल मौसूल हुई तकरीबन 6 बजे कि एक ख़ातून है, वो जो मुद्दई है उनके घर पे वो काम करती थी, कपड़े धोती थी। कहती वो आई है, वो 15 साल से वहाँ रहती है, तो वो आई है कि हमें बच्चा चाहिए, थोड़ी देर उसको हम घुमा लेते हैं। अब वो फ्रीक्वेंट विजिटर थी, उस घर के कपड़े धोती थी, घर जाके कपड़े धोती थी, तो उन्होंने बच्चा हवाले कर दिया। 2 माह का बच्चा था। तो जब टाइम काफ़ी घंटा गुजर गया तो वो लोग घर पहुँचे, देखा कि यार ये खातून तो भाग चुकी है, घर को ताले लग चुके हैं। तो उन लोगों ने फिर सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। बेगम कोट चौकी वहाँ पहुँचे कि हमारा बच्चा इस तरह गायब हो गया। और किन पहलुओं पर आपने एहसान तफ्तीश की? कौन सा ऐसा सुराग था जिस पे चल के
अब मुलज़िम तक पहुँचे? होता ये बेसिकली जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन इस तरह मिलती, कंप्लेन मिलती है, हमें ये एक तरह से ये सेंसिटाइज केसेस है, काफ़ी हीनियस ऑफेंस है ये बच्चा अगवा करना। तो इसमें हम कोशिश करते हैं फ़ौरन हम FIR दें। अब FIR दे के इसको फिर दूसरी बात ये होती है कि बच्चे को रिकवर करवाना, क्योंकि 2 माह का बच्चा है, खुदा ना खास्ता थोड़ा मिस हैंडल हो जाए, जान भी जा सकती है, उसकी जान को भी ख़तरा होता है। तो बड़ा एक सेंसिटिव केस है। इस पे IG साहब की खसूसी एक हिदायत होती है कि इस तरह के केसेस हमें फ़ौरन ऑपरेशंस विंग ने फ़ौरन उसको ट्रेस करना है। इन्वेस्टिगेशन वालों ने, इन्वेस्टिगेशन जो हमारी विंग है उन्होंने करना ही करना है। तो इनिशियल जो इसमें 24 आवर्स है तो बड़े क्रूशल होते हैं, आप तभी उसको पकड़ सकते हो, वो खातून या वो मुलजिम ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। तो ये चीज़ हमारे माइंड में थी, तो फ़ौरन ही हमने टीम तश्कील दी जिसके हेड थे SHO शादरा आमिर शहजाद साहब। उसके साथ साथ उस टीम को हेड उनके साथ लीड किया वो थे खुर्रम, जो हमारे बेगम कोर्ट के चौकी इंचार्ज है, नए तैनात हुए। उन्होंने फ़ौरन रेड्स किए। सबसे पहला रेड उस घर पे था जहाँ पे खातून रहती थी, चूँकि वो जगह बंद थी एज आई टोल्ड अर्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ये था कि वो घर का मालिक मकान जो था जिसने उसको किराए पे रखा था, आपने मालिक मकान को पकड़ा? मालिक मकान को पकड़ा। मालिक मकान ने कहा कि ये खातून एक बंदा था, उसने इसकी गारंटी दी थी। नेक्स्ट रेड उसके घर पे हुई जिसने इसकी गारंटी दी थी। टोटल कितने रेड्स किए थे? ये तकरीबन हमने 12 घंटे के अंदर 8 रेड्स किए। अच्छा। और ये शादरा में भी हमने किए और ये हमने शेखुपुरा के इलाकों में भी किए। अच्छा, ऐसा जब आपने मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया तो अब तक की इब्तदाई तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई? ये जब हमने गिरफ़्तार किया इनिशियल, अभी मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी है, लेकिन जो इब्तदाई इसमें हुई उसमें ये कि जो हमने इसके एस्पेक्ट्स देखे हैं, ये जो मुलजिमा है कौसर बीबी, ये इनकी दूसरी शादी थी। पहली शादी से इनके 2 बच्चे थे, दूसरी शादी से इनकी कोई औलाद नहीं है। तो एक फैक्टर ये भी लगता है कि शायद ये इसलिए इन्होंने ये बच्चा अगवा करने की कोशिश की थी। तो हम अभी तफ्तीश फ़िलहाल तफ्तीश मज़ीद इस पर चलेगी। अच्छा, ऐसे वाक़यात क्यों एक तसलसल से हो रहे हैं? अगर हम पीछे देखें तो नौज़ायदा बच्चों के अगवा के वाक़यात एक तसलसल से सामने आ रहे हैं। क्या समझते हैं बहैसियत पुलिस ऑफिसर, क्या कोताहियाँ हैं, क्या कमियाँ जिनकी वजह से ये वारदातें हो रही हैं? इसमें जो हमारे साथ बच्चे की जो वालदा थी वो काफ़ी कल खुश भी थी। फिर उन्होंने एक अपील भी की थी, बहुत अच्छा उनका मैसेज था कि बच्चों को इस तरह किसी के हवाले, स्ट्रेंजर्स के हवाले आपने नहीं हवाले करना है। तो एक ये फैक्टर भी है। फिर प्लस हमारी ये जो एक है फीलिंग कि बच्चा हमारी औलाद लड़का होना चाहिए। अब जितने केसेस होते हैं उसमें हम अक्सर थे वो बच्चे अक्सर अगवा हो रहे हैं जो लड़के हो। तो एक हमारा एक थिंकिंग चल रही है पैट्रियार्की की कि नहीं, बच्चा होना, लड़का होना अगर वो है, लड़की है तो वो उस बहस में लोग चले जाते हैं। तो एक ये फैक्टर भी, ये कंटिन्यूसली हो रहा है कि बच्चा ही अगवा हो रहा है और वो उसको फिर आगे अपने पास रखना चाह रहे होंगे। ये एक फैक्टर कंटिन्यूस एक चल रहा है जो कि अनफॉर्चुनेट सी बात है। बात सुनी आपने ASP शादरा सर्कल सैयद एहसान शाह की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के सुपुर्द कर दिया गया है, जहाँ उनसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जुर्म कोई भी हो और करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन आ जाता है कानून की गिरफ्त में। ऐसा ही हुआ गुलबर्ग में सिख फैमिली को लूटने वाले डाकुओं और शादरा से 2 माह के नन्हे ईसा को अगवा करने वाले अगवाकारों के साथ। पुलिस ने दोनों वाक़यात में मुलविस मुलज़मान को गिरफ़्तार करके उनसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा तो उन्हें मिलेगी उनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।